Welcome and namaste to all who joined this lecture series of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Under this lecture series, we are going to make a detailed discussion in respect of this new law coming to force by replacing the Code of Criminal Procedure. Since there is a rearrangement of section made in Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and the things will be known differently in this Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which will be known in earlier Code of Criminal Procedure. So the detailed discussion in respect of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is being required, and this is the purpose of this lecture series. This lecture series is being divided into various parts, and today we are just going to discuss the introduction part of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. So it will be very easy to understand the provisions of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita once we discuss it in introduction, the main aim and object of the law by which this law is being made. Now coming to the introduction part, this today lecture is designed keeping in view follow certain pattern. Flow of the lecture today lecture is, firstly we are going to discuss the nature of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Then we discuss brief legislative history, how this law come into existence. Earlier, इससे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पहले इस सब्जेक्ट मैटर पे कौन कौन से लॉ थे. Then we discuss in respect of content, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितने sections हैं, कितने chapters हैं, this we will discuss. And finally, we come into the major discussion, which is purpose of this today's first lecture is what is the purpose due to which this Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita is being made and how this law is being operated. So once we start to read the provision, जब हम लोग इसके प्रावधानों को पढ़ें तो हम लोगों को ये ऑब्जेक्ट याद रहना चाहिए कि दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसके कारण इस लॉ को बनाया गया है. So today this is the flow of lecture. Now coming to the nature, as we discuss in flow of lecture, firstly we are going to discuss the nature of this law. What is the nature of this law? तो हम लोग की मूलभूत अंडरस्टैंडिंग है कि लॉ को हम लोग कुछ लॉस को हम लोग सब्सटैंटिव लॉ समझते हैं और कुछ लॉ को हम लोग प्रोसीजरल लॉ समझते हैं. नाउ दिस लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is an example of procedural law. Why it is procedural law? It is very simple because it not talks about act and omission is an offense or this is the punishment of that offense. This talks about once the offense is committed, जब offense होगा, then how this offense is being reported, then how this offense is being investigated, how it will be inquired, how it will be tracked, and how finally the offender will be get punished. If the offender is not satisfied, what are the remedies of appeal available for offenders or person who is convicted by the competent court. This way, what we understand, the main subject matter of this Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is not to deal what act or omission will be offense. The main subject matter is once the offense is committed, how it will be dealt upon, how it will be dealing with these offenses. So this Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 will be understood as a procedural law. यह एक प्रक्रियात्मक विधि है. इस प्रक्रियात्मक विधि इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये यह नहीं बता रहा है कि ये एक्ट और ओमिशन ऑफेंसेस हैं और उसकी ये पनिशमेंट है. जैसा कि हम लोग भारतीय न्याय संहिता में पढ़े, उसने सिंपल तरीके से बताया दीज आर द एक्ट एंड ओमिशन विच इज बीइंग ऑफेंस एंड फॉर दिस ऑफेंस दिस इज द पनिशमेंट. इस अपराध के लिए इतनी सजा होगी. नाउ भारतीय न्याय संहिता ने लेकिन ये नहीं बताया कि वंस ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड तो फिर उसका सूचना हमें कहाँ देना है, उस सूचना के आधार पर उस पर अन्वेषण जांच कैसे होगी, कैसे उसका विचारण किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में भारतीय न्याय संहिता में नहीं बताया. इसलिए हम लोग भारतीय न्याय संहिता को सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ बोल रहे हैं और यहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिकॉज इट डील्स हाउ द ऑफेंस कैन बी इन्फॉर्म्ड
how it will be investigated, how it can be inquired, how the trial is being conducted. These aspects will be the subject matter of the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita. So we here called भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 is a procedural law. अब यहाँ एक सिंपल सा बात ये भी समझ लेना है, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि whether all the provision of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता talks about the procedural matter. None of the provision in भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is in substantive in nature. तो यहाँ एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, नहीं, there are some provision, कुछ ऐसे प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हैं जो सब्सटैंटिव नेचर के भी हैं. एज फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 144. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टॉक्स अबाउट मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू पास द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144. तो हियर the person will given right to claim maintenance under section 144. This way, section 144 may be called a substantive provision. Again, right to bail is also under 478, 480. The right to possession of movable property here will be dealt under section 174. Again, there is a provision of appeal also, and there is a provision of revision also. So this way, there are some provision in Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita which are substantive in nature also. So finally, in respect of nature of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लॉ की प्रकृति के रिस्पेक्ट में हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तो है प्रोसीजरल लॉ, लेकिन कुछ ऐसे इसमें प्रावधान है, सम प्रोविजंस आर देयर इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which are substantive in nature. Once we understand this, it is also important to understand this is not only a procedural law, rather it can be better be said that this is one of the comprehensive procedural law for all substantive criminal law. कहने का मतलब यहाँ यह है कि सिर्फ इतना अंडरस्टैंडिंग करना कि ये प्रोसीजरल लॉ है, इतना ही सफिशिएंट नहीं है. इससे ज़्यादा हम लोग को ये समझना है कि ये सिर्फ एकमात्र ही प्रोसीजरल लॉ है जो सारे सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ के रिस्पेक्ट में लागू होता है. हाउ कैन वी कम टू नो, कैसे हम लोग ये बात समझते हैं कि दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव लॉ विच अप्लाई फॉर ऑल सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ. जैसे हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे ऑफेंसेस को पढ़ा. अब उन सारे ऑफेंसेस का जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल है, दैट विल बी डेल्ड बाय द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. उनके सारे जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार चलेंगे. बस उतना ही नहीं, अदर क्रिमिनल लॉज के भी प्रोसीजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार पर चलेंगे इफ सब्जेक्ट टू द एनी इनैक्टमेंट मेड फॉर दिस पर्पस. अगर उस पर्पस के लिए प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे कुछ अदर इनैक्टमेंट बनाए गए हैं तो उनको भी लिया जाएगा, उनके प्रोसीजर को भी माना जाएगा, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो प्रोविजन है वो वहाँ भी लागू किए जाएंगे. तो दिस विल बी क्लियर बाय द सेक्शन 4 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट बाय रीडिंग सेक्शन 4. धारा 4 को पढ़ के आप इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझ सकते हैं, जहाँ पे दो सबसेक्शंस दिए हुए हैं धारा 4 में. और धारा 4 के दोनों सबसेक्शंस में जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ सिंपल सी बात लिखी गई है, ऑल ऑफेंसेस अंडर द BNSS 2023, भारतीय न्याय संहिता में जितने भी ऑफेंसेस हैं shall be investigated, inquired, tried and otherwise dealt with according to the provision herein contained. It means clear, whatever the offences is being prescribed under Bharatiya Nyaya Sanhita, that will be investigated, inquired and tried as per the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. So I hope so there is no doubt कि the offences जो भी भारतीय न्याय संहिता में prescribe किए गए हैं उनका प्रोसीजर किसके अनुसार चलेगा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार चलेगा. Here not only the भारतीय न्याय संहिता ऑफेंसेस के लिए प्रोसीजर है, यहाँ सब सेक्शन 2 में ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ. हियर एनी अदर लॉ टर्म्स मीन लॉ ऑफेंसेस व्हिच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अंडर भारतीय न्याय संहिता. That shall also be investigated, inquired, tried, otherwise dealt with according to the same provision. Means वो
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार ही उनके सारे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल हो गए। अदर लॉज में भी जो ऑफेंसेस दिए हुए, जैसे हम लोग देखते डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में गिविंग और टेकिंग डॉरी इज एन ऑफेंस। हम बोलेंगे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में तो इनको ऑफेंस बनाया गया। अब नाउ हाउ द ऑफेंस अंडर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसके ऑफेंसेस जो दिए हुए हैं वो कैसे, उनका इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल किस तरह से चलेगा। तो हियर दिस सबसेक्शन टू आंसर कि उनका भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही चलेगा, बट सब्जेक्ट टू द इनैक्टमेंट मेड टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर उस लॉ में कुछ चीजें बताई गई हैं, स्पेशल बातें, तो उसको भी फॉलो किया जाएगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भी फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग ये बात को समझें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजरल लॉ है। इसमें लेकिन कुछ प्रोविजंस जो हैं वो सब्सटैंटिव नेचर्स के भी हैं, और साथ में हम लोग ये भी समझे कि इट इज अ comprehensive procedural law for all statute which are dealing with the offenses। जो भी स्टैट्यूट, जो भी कानून किसी भी को ऑफेंस की तरह डील करता है, तो उनके लिए भी प्रोसीजरल लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही है। नाउ कमिंग टू द लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ दिस लॉ, वंस वी अंडरस्टैंड कि नेचर क्या है, प्रकृति क्या है इस लॉ की, तो अब हम लोग को थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करना होगा कि इसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, हाउ दिस लॉ कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये लॉ जो आज हम लोग को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के रूप में दिख रहा है, तो ये लॉ आज कैसे आया। तो हियर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज, इसमें एक मूलभूत बेसिक चीज हम लोग को ये समझना है कि अंटिल 1882 1882 तक there is no uniform code of criminal procedure, means क्रिमिनल कार्रवाइयों के लिए, आपराधिक कार्रवाई के लिए कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंडिया में नहीं था। कब तक? तो 1882 तक। अब 1882 में पहला कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो प्रभाव में आया। पर्पस ऑफ दिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 टू डील द प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस के लिए क्या प्रोसीजर होंगे, वही पर्पस थी। और दिस 1882 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय 1898, और उसको रिप्लेस कर दिया गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। आफ्टर दिस 1898 so many amendments are being made, and due to the recommendation of लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन से नया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दिस इज बीइंग नोन एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और उसी को हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के नाम से जानते हैं। फाइनली वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो है वो 2023 तक चला है, और by replacing it the new law for criminal proceeding come into existence, that is भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो this way we come to know कि 1882 में पहला कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आया, then it will be replaced by 1898 वाले लॉ को भी बहुत बार चेंजेस की गए, और फाइनली लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1973 में फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आया, और उसको भी फिर हम लोगों ने 2024 में रिप्लेस कर दिया, जिसको हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आई होप सो दैट विल बी क्लियर कि हाउ दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड दिस वे वी जस्ट मेक अ डिस्कशन, छोटा सा डिस्कशन हम लोगों ने किया लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा, यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि व्हेन दिस लॉ कम इनटू फोर्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये लॉ कब फोर्स में आया। तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं 1 जुलाई 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कम इनटू फोर्स। द रेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज 1 जुलाई 2024। Once we come to know a brief how this law come into existence, it is important for us, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये जानें कि इस लॉ का कंटेंट क्या है। कितने, हम लोग बेसिकली ये जानते हैं कि एवरी लॉ इज बीइंग डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, एंड दिस चैप्टर कंसिस्ट सेक्शंस,
हम लोग जानते हैं हर लॉ जो है वो चैप्टर्स में बटे हुए रहते हैं, कोई भी पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट होते हैं तो वो चैप्टर्स में बटे होते हैं और चैप्टर्स में सेक्शंस बेसिक होते हैं। तो दिस लॉ हैज 39 चैप्टर्स, दिस लॉ हैज 39 chapters and 531 section. Along with this chapter and section, it also contain two schedules, first schedule and second schedule. First schedule talks about classification of offense. पहला शेड्यूल जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में बात करता है एंड सेकेंड शेड्यूल प्रिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर डिफरेंट प्रोसीडिंग्स, बहुत सारे प्रोसीडिंग्स के रिस्पेक्ट में फॉर्म्स के बारे में। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नो, ये याद रखने वाला विषय है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 39 चैप्टर्स हैं, 39 अध्याय हैं और उन अध्यायों के अंतर्गत 531 प्रावधान किए गए हैं, 531 सेक्शन हैं और इस लॉ में दो शेड्यूल्स भी हैं जिसमें शेड्यूल 1 जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के रिस्पेक्ट में है और शेड्यूल 2 जो है वो फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। Once we come to know the content, it is also important to know कि किन सारे विधियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावित नहीं करती, which are the laws which cannot be affected by the operation of this भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, and this we will come to know by reading section 5. Section 5 is important, so I hope so you can see this section 5. And section 5 is a saving clause of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये एक सेविंग क्लॉज है, किसी भी लॉ में जब कोई सेविंग क्लॉज किया हुआ होता है तो यहाँ हम लोग ये अर्थ समझते हैं कि उस सेविंग क्लॉज में यह बताया जाता है कि व्हाट आर दोज लॉ व्हिच कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। इट मीन्स कि कौन से वो लॉ हैं। तो हम लोग यहाँ जब सेक्शन 5 देखते हैं तो सेक्शन 5 में हम लोग पाते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता in the absence of a specific provision does not affect special or local law, कोई भी स्पेशल या लोकल लॉ which is meant for special purpose, that is for special law. Let us suppose there is a law POSCO, so this POSCO law is being made for special purpose for dealing with the sexual offences made against children. So this is called an example of a special law. Now there are certain local laws also which is being come into which is in existence. So these special and local law is not affected by the operation of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Again, any special form of procedure is being prescribed. कोई भी अगर स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर किसी लॉ में प्रिस्क्राइब किया है और स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन और पावर इज बीइंग कन्फर्ड, कोई अगर स्पेशल पावर और ज्यूरिसडिक्शन अगर किसी लॉ में किसी चीज़ को दिया गया है तो उनको यह प्रभावित नहीं करता है। तो टाइम टू टाइम वी कम टू नो कि हाउ दिस विल बी ऑपरेटेड, लेकिन यहाँ एक क्लैरिटी रखना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसी भी स्पेशल लॉ, किसी भी लोकल लॉ, किसी भी स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन या स्पेशल पावर कन्फर्ड बाय द लॉ को डिस्टर्ब नहीं करता। नाउ 531 सेक्शन 531 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दैट रेस्पेक्ट। 531 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है या ऐसे भी कोई कॉमन सेंस से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अच्छा ये बताइए कि वंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कम इनटू फोर्स देन the cases which is being registered or investigation which is being pending or cases which is being pending for a trial, what happened to those cases which is earlier registered under code of criminal procedure, जो कि code of criminal procedure के अनुसार registered हैं, तो उन सारे cases का क्या होगा। तो this issue is being addressed by section 531 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. This is a repeat. Here you can also come into know the code of criminal procedure 1973 is hereby repeat. Firstly, this fact come into know by reading this 531 कि this code of criminal procedure 1973 is now repeat. ये तो अब repeal हो गया है। अब everybody will come to know कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या प्रावधान दिए गए। लेकिन whatever the cases is being registered, जो भी registered cases हैं वो उन प्रावधानों से चलाए जाएंगे और ये माना जाएगा कि वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस के आधार पे ही वो केसेस पेंडिंग हैं।
तो 531 सेक्शन जो है, धारा 531 जो है, उसको भी पढ़ लिया जाना ज़रूरी है, so that you come to know, okay, once the law is being repealed, but how the earlier law affect with this new existing law, कैसे earlier law existing law को affect कर रहा है, इस ऑपरेशन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है। सो द कंटेंट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज नाउ टू बी क्लियर। अब ये कंटेंट जो है ये हम लोगों ने क्लियर कर दिया, और इस चीज़ को अब क्लैरिटी से समझ लेना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 39 चैप्टर्स हैं, 531 सेक्शन हैं और 2 शेड्यूल हैं। यह लॉ किसी भी तरह से किसी स्पेशल और लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करता है, ना ही किसी स्पेशल पावर और स्पेशल जुरिसडिक्शन अगर किसी लॉ में दिया गया है उसको भी अफेक्ट नहीं करता है, और ये पूर्ववर्ती कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिपील करता है, पर उनसे कुछ जो भी प्रभावित चीज़ हैं उसके आधार पे ये 531 में प्रावधान करता है, जिससे अर्लियर चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। नाउ वंस वी डिस्कस द कंटेंट, आवर टुडे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कमिंग टू कम हियर। तो अब ये हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे पहुंच गए। दिस आर जस्ट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बट टुडे जो लेक्चर है वो हम लोग इस इम्पॉर्टेंट को समझने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वंस वी अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग मीन्स वंस वी अंडरस्टैंड कि पर्पस और एम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का क्यों है, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अस टू द प्रोविजन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तब हम जब आगे के प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ेंगे तो उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो आई होप सो एवरीबडी विल हैव टू बी वेरी केयरफुली लिसन दिस थिंग। इसको आप बहुत केयरफुली सुनेंगे और उस केयरफुल से सुनने से अपना एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करेंगे रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज बीइंग बेसिकली डिजाइंड या अर्लियर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एज once we see the preamble, now the name of law is being changed। हम लोग देख क्या रहे हैं कि earlier this law is being known as code of criminal procedure, अब इसको चेंज करके इसका नाम रख दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बट once we see the preamble, जब हम इस एक्ट के प्रियम्बल को देखेंगे तो यहाँ पे हम पाएंगे कि दिस इट इज बीइंग क्लियर कि दिस लॉ इज बेसिकली डील द प्रोसीडिंग फॉलोड फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये लॉ बेसिकली जो है वो जो प्रक्रिया फॉलो की जाएगी क्रिमिनल ऑफेंसेस के संदर्भ में। बस यहाँ पे चूंकि लॉ को फोर्स करने के पीछे कुछ मंशा है, इसलिए इसका नाम चेंज किया गया है। तो नाम चेंज करना जो है वो सिर्फ उस मंशा को स्पष्ट करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे नागरिकों के सुरक्षा के संदर्भ में भी के अनुसार प्रोसीजर है कि इन प्रोसीजर के माध्यम से नागरिकों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा, उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोसीजर बनाए गए हैं, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका नाम रख दिया गया। लेकिन बेसिकली ये लॉ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को डील करने के लिए ही बना रहा है। तो जब हम इसको देख रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस लॉ का पहला पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉ, एंड इट आल्सो बी वेरी मच क्लियर हियर कि आपराधिक न्याय प्रणाली को संचालित करने के लिए यह लॉ बहुत महत्वपूर्ण, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बाय विच द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया इज बीइंग डेल्ट अपॉन। और हम लोग अगर जस्टिस वेंकट चलैया का चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस वेंकट चलैया के स्टेटमेंट को याद रखें तो ये भी हम लोग यहाँ जानते हैं कि द कंट्रीज सिविलाइजेशन इज बीइंग मेजर्ड बाय द इन्फोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। किसी भी देश की जो सभ्यता है वो इस बात से मानी जाती है कि वहाँ पे क्रिमिनल लॉ को किस तरह से इन्फोर्स कराया जाता है। तो दिस वे वी कम टू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अच्छा ये लॉ का जो है पर्पस जो है सिर्फ क्या होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, तो फर्स्टली अगर हम लोग इन जनरल टर्म्स में बोले तो दिस लॉ इज बेसिकली मेड फॉर द पर्पस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस, अपराधों का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि हम लोगों ने जब नेचर डिस्कस किया था तो वहाँ किया था कि जब हम लोग सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉज पढ़ रहे हैं जैसे BNS एंड अदर
क्रिमिनल लॉ, आर्म्स एक्ट या नार्कोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंस एक्ट, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि वहाँ एक्ट और ऑमिशन को ऑफेंसेस बनाया जा रहा है और उसके लिए पनिशमेंट बनाया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि वंस द ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड, तो हाउ दिस ऑफेंस विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट. Who will administer? The state is responsible because offense is considered as a public wrong. क्योंकि हम लोग मानते हैं कि offense जो है वो public wrong है. तो administration of offense is a first purpose. We can always be remember because once it will be remembered और हम ये याद रखेंगे, तो जब भी हम बहुत सारे प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये प्रावधान इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा में लिए हुए हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस करना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पस है. इसलिए ये सारे प्रोसेस हम लोग मानते हैं कि हम अरेस्ट के प्रोविजन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ेंगे. देन हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द person will be compelled to appear before court, that will be important. Then how the criminal trial is being conducted, how the criminal court will take cognizance. These are the provisions which are being discussed in भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो वो क्यों डिस्कस किए गए? क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मेन पर्पस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस के रिस्पेक्ट में है कि ऑफेंस जब हो जाए तो उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन करना है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना है, उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे कैसे उस पर चार्ज फ्रेम करना है. तो दीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑफेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफेंसेस, या ऑफेंस हुआ तो उसका किस तरह से स्टेट प्रबंधन करती है. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखते हैं. तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज बीइंग डिजाइन्ड फॉर द पर्पस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ offense. Now, how the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita administers the offense? तो firstly it classify the offense. इन्होंने offenses को क्या किया? वर्गीकृत कर दिया है विभिन्न भाग. जब भी हम किसी चीज का वर्गीकरण कर रहे हैं तो पर्पस हमारा जो है वो प्रबंधन ही रहता है, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ही रहता है. इसलिए इन्होंने ऑफेंसेस को पहले क्लासीफाई किया. जब हम क्लासीफाई करेंगे देन इट विल बी इजी टू नो कि हाउ दीज ऑफेंसेस विल बी डिटरमाइंड. तो हम लोग आगे जानेंगे कि ऑफेंसेस को किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस द पर्पस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस. जो क्लासिफाई किया गया है उसका पर्पस एडमिनिस्ट्रेशन ही है. नाउ क्रिमिनल केसेस को इन्होंने विभिन्न स्टेजेस में बांट दिया है. एवरी क्रिमिनल केस हैव इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, एंड बाय फॉलो दिस इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल द कंक्लूजन ऑफ केस विल बी कम. तो इंक्वायरी होना, इन्वेस्टिगेशन होना, ट्रायल होना, एक तरह से उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध की सूचना के बाद ये सारी प्रक्रिया चलेगी ही चलेगी. इट मीन्स कि 3 स्टेजेस में क्रिमिनल केसेस को इन्होंने बांटा है. नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्टेन फंक्शनरीज बिकॉज फंक्शनरीज आर इम्पॉर्टेंट. विदाउट फंक्शनरीज नो लॉ विल बी ऑपरेटेड. तो फंक्शनरीज में इन्होंने कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स, प्रोसिक्यूशन, देन पुलिस एंड देन जेल अथॉरिटी, ये 4 मेजर्स फंक्शनरीज जो है जिसके आधार पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता काम करती है. तो दीज आर बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड. ऑल्दो हियर द क्लैरिटी मस्ट बी कि पुलिस एंड जेल अथॉरिटीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. यहाँ पे क्लैरिटी रखना है कि जो पुलिस और जेल अथॉरिटी है ये इसके द्वारा निर्माण नहीं की गई है, इनके लिए अलग एक्ट है. लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स एंड प्रोसिक्यूशन इज बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. देन दिस in order to administer the offense, this law provides the 2 modes through which this law come into operated. Filing FIR, आप FIR फाइल करके और कंप्लेन करके इस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो this way we come to know administration of offense is मेन पर्पस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. और इसको जानने के बाद आप हमेशा ये बात दिमाग में रखेंगे कि हम कोई भी प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो यू जस्ट बीइंग फर्स्टली अंडरस्टैंड कि दिस प्रोविजन इज बीइंग मेड बाय द लेजिस्लेचर. इट इज बिकॉज कि लेजिस्लेचर ये मानता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एडमिनिस्टर द ऑफेंस. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज prevention of offense. Meaning is very much clear here. Prevention of offense means
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता not only talks about administration of how the offences once being committed being dealt upon, ये तो उनका एक एस्पेक्ट है ही, लेकिन साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये भी क्लियर करता है कुछ प्रावधानों के द्वारा, कुछ प्रोविजंस के द्वारा कि अपराध को रोका जाना भी इम्पोर्टेंट है. सो देयर आर certain chapters in Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, as for example chapter 9, then chapter 10, then chapter 11 and chapter 12. जब आप इन चैप्टर 11, चैप्टर 9, 10, 11, 12 के कंटेंट्स को देखेंगे तो यू कैन इजीली एनालाइज, आप इजीली एनालाइज करेंगे द पर्पस ऑफ दीज चैप्टर्स और प्रोविजन कंटेंट अंडर दिस चैप्टर इज टू प्रिवेंट द ऑफेंस, ऑफेंसेस को रोकना उनका मुख्य उद्देश्य है. तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये भी कंक्लूड करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसेस के प्रबंधन के लिए ही नहीं है, बल्कि ऑफेंसेस, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो कि ऑफेंसेस को रोकने के संदर्भ में भी बनाए गए हैं. तो हियर how the prevention of offences will be dealt by the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita will be clear by reading these chapters. In further lecture, we will also discuss in detail respect of provision of prevention of offences under Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita. तो अब हम लोग ये बात क्लियर हो गए कि the main purpose, this is only for understanding, हम लोग better understand करें इन provisions को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के में दिए गए प्रोविजंस को. तो इसके लिए हम लोग को टू इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑलवेज बी रिमेंबर. वन इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोविजन इज बीइंग मेड बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस. अपराधों के घटित होने पे उनका प्रबंधन स्टेट कैसे करेगी, किस माध्यम करेगी, ये मेन उनका मुख्य उद्देश्य है. और साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बहुत सारे प्रोविजंस इसलिए बना रही है जिससे अपराधों पे नियंत्रण भी रखा जाए, अपराध की रोकथाम भी की जा सके. सो दैट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस. अगेन मेनी टाइम यू मे कम टू नो कि दिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज providing certain specific timeline to complete various proceedings. Then it incorporates the technology. So this we can understand because of this reason this code of criminal procedure is being replaced. इसी रीजन से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस किया गया क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइंस नहीं थे प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करने, टेक्नोलॉजी इसका बहुत कम इस्तेमाल हुआ था. तो ये भी उनका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. बट बाय एंड लार्ज once we see carefully the preamble of this Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita, we can easily conclude that the main reason due to which this law being framed is one is administration, अपराधों का प्रबंधन जो है इनका मुख्य उद्देश्य है, और अपराधों का की रोकथाम और उन पर नियंत्रण करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है. तो इस तरीके से हम लोगों ने यह जाना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के क्या पर्पस है. तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस पे हम लोग करेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस दैट इज वी ऑलरेडी डिस्कस अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस हेड के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कैसे एडमिनिस्टर करती है ऑफेंसेस को. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम टू know how the offences are classified by the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and the purpose is to administer the offences. So thank you for this lecture and we will meet again in lecture number 2 of our introduction part. So thank you.